let us start with SN2, which is nucleophilic substitution bimolecular. As I already told you that bimolecular का मतलब है that in the rate determining step, the molecularity will be 2. There will be 2 molecules involved. Mute yourself, everyone. There will be 2 molecules involved in this particular reaction in the rate determining step. है ना? SN2 bimolecular या let us say nucleophilic substitution bimolecular that we have to do first. Okay, so let us start and see what happens. सर कितना तक हुआ है सर? मेरा थोड़ा वाईफाई डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए। अभी शुरू हुआ, अभी ठीक है। Okay, so as you can see that Rx is our alkyl halide. This is our alkyl halide, and a nucleophile will attack this. A nucleophile will attack this and form RNU plus X minus. This halide ion, as I already told you, is a good leaving group. That is why alkyl halides are an ideal substrate to undergo SN2 reactions. है ना? Now let us first understand the mechanism to understand what is so special about SN2 or what is different about SN2 that is not there in other type of nucleophilic substitution. So we will start with the mechanism. Please mute yourself, everyone, and listen to the points very carefully and do not write when I'm telling you the mechanism. Please, जब मैं mechanism आपको बता रहा हूँ तो कुछ लिखिएगा मत, है ना? यहाँ पर बस फोकस करिए. अब सबसे पहले मैं एक सबस्ट्रेट बनाऊंगा. सबस्ट्रेट का मतलब है एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड में ये जो 2 सॉलिड लाइंस हैं, दीज आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना? और ये जो वेज है, दिस वेज इज कमिंग आउट, इतना आपको पता है. दिस वेज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, and this is the dash that is also going into the plane of paper. This dash line is going into the plane of paper, right? So this is our alkyl halide. यहाँ पे मैं आपका halogen भी बना देता हूँ. This is your halogen, है ना? I'm not specifying the other 3 substituents. कुछ भी attach हो सकता है वो कार्बन से. The only thing that is compulsory over here is halogen, because it is a very good leaving group, and leaving group is very important for nucleophilic substitution. Now let us see, here is the nucleophile. Now what nucleophile will do, nucleophile will attack from this side, from the back side or from the rear side, है ना? So nucleophile is attacking this carbon. Why it is attacking the carbon? This is the first question. The answer lies within this polarity. As you can see that because of this polarity, this carbon carrying halogen is also carrying a partial positive character, and nucleophiles always look for positive center since they are electron rich, so they will be attacking this particular carbon. But the thing is, the moment carbon starts taking electron pair from nucleophile, the moment it starts getting that electron from nucleophile, it will have to get rid of this particular electron pair. Why? Because carbon has 4 bonds, and 4 bonds mean 8 electrons. And if you have 8 electrons, then your octet is complete. You have no space or no room left for the electrons, for the outside electrons to be gained. So what carbon will do is carbon will try to detach its halogen, that is also a good leaving group, from itself, so that it can get attached to the nucleophile. Now moving on to the next structure that I'm drawing. Now you will see that this solid line 1, as you can see on the screen, I have marked that solid line as 1. That will move in this direction, that will be a little bit tilted, that will come straight like this, है ना? Similarly, this wedge will also move over here and it will come straight in front of your eyes. Previously that wedge was coming out of the plane of paper, but it is going slightly towards the left hand side. But now this wedge is directly coming towards you. Now let us talk about dash. The same thing will happen with dash also. Dash will also go away from you, but it will go straight away from you, not in the left hand side direction. And what will happen to the nucleophile? The nucleophile will start getting attached. This dotted line represents the newly formed bond between carbon and nucleophile. It suggests that nucleophile is trying to form a new bond with the carbon. And what will happen to
the halogen will start breaking its old bond with the carbon. Both the bonds are represented by dotted lines. It means that nucleophile is trying to establish a new bond with carbon, and halogen is taking away its bond, and the bond between carbon and halogen is being broken, right? So nucleophile, after giving its electron pair, it will become partial negative from fully negative, and halogen, as it is taking away the electron pair, it will also become delta negative. Now this particular species will be called the transition state or the transition complex of this particular reaction. Always remember, when a reaction has only one step, it is elementary, then the only thing we have to look forward to is the transition state. Because if you have more than one step, then you definitely have intermediate, and we will look forward to the intermediate. But when we are talking about one step reaction, which SN2 is, because in one step only the old bond is breaking and the new bond is formed. So इस केस में हम लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट थिंग इज ट्रांजिशन स्टेट. फाइनली क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं. फाइनली आप देखेंगे कि ये जो वन बॉन्ड है ये और इधर टिल्ट कर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है. और ये जो वेज और डैश है ये और इधर राइट हैंड साइड मूव कर जाएंगे. दे विल बी लाइक yes, they will be like this, and this nucleophile will get attached. This nucleophile will get attached to it like this, and Rx minus, that is the leaving group, that will be like this. So this is a one step in which reactant is converting to product, and as you see in this conversion, we are getting a transition state in between, which will be very important. What is transition state? Transition state is basically representing a stage when the old bond was breaking and new bond was being formed. And as you can see one by one how the mechanism is taking place. So if you have any doubt, please ask me. Otherwise, write it down the way I have written. सर वो हैश और वेज टिल्ट होता क्यों जा रहा है? मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब वो धीरे धीरे टिल्ट होते क्यों जा रहा है? टिल्ट होते क्यों जा रहा है? ठीक है, ये लिखो फिर मैं बताता हूँ. सर कोई इंटरमीडिएट क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है? क्योंकि एक ही स्टेप तो है. अच्छा. मोर देन वन स्टेप रहेगा तब तो इंटरमीडिएट बनेगा. सर अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करते तो सेम भी तो होता ना सर? नहीं, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता. I will tell you the reason. न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता. पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूं इसके बारे में. लिख लिया, आगे बढ़े. ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड. चलिए पहले इसका जवाब देते हैं आपको. अटैकिंग फ्रॉम बैक और रियर साइड. देखिए इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हम सबको पता है ना. And if you see, our leaving group or the halogen is also electron rich. So अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, अगर आप बोलोगे कि फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो क्या होगा बोलो? न्यूक्लियोफाइल एंड हेलोजन both will encounter repulsion. और रिपल्जन क्या करता है? रिपल्जन चीजों को अनस्टेबल बना देता है. तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल क्यों बैक साइड से अटैक कर रहा है? इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इट वांट्स टू अवॉइड द रिपल्जन दैट इट कैन एनकाउंटर फ्रॉम दिस हैलोजन. ठीक है, नंबर 1.
दूसरा, आप बोल रहे हो कि ये ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे चेंज क्यों हो रही है, क्यों वेज इधर शिफ्ट होता जा रहा है, फाइनली इधर शिफ्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने आपको ज्योमेट्री बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी कंपाउंड का ज्योमेट्री किस चीज पर एम्ड था, ज्योमेट्री कैसे फॉर्म होता था, ज्योमेट्री इज एम्ड एट मिनिमाइजिंग द रिपल्जन। We want to minimize the repulsion between atoms or group of atoms, and that we do by maintaining the maximum distance. So our reactant is basically tetrahedral. रिएक्टेंट जो है वो टेट्राहेड्रल है, क्यों, क्योंकि कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो टेट्राहेड्रल। लेकिन जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांजिशन स्टेट इज रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग कॉल्ड PCl5। क्या बोलते थे हम उसको, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर आपने ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे, ऐसे सोचिए कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और नीचे से हेलोजन जा रहा है, ठीक है। तो व्हाई दिस स्टेट हैज बीन attained, this state has been attained because in this particular structure we will have minimum repulsion, ठीक है। तो इसलिए पहले ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, उसके बाद फाइनली जब 4 हो जाते हैं तो वापस टेट्राहेड्रल बन जाता है, वापस ये टेट्राहेड्रल बन जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई दिस ज्योमेट्री इज चेंजिंग। दूसरा, हम इंटरमीडिएट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर आप ध्यान से देखिएगा, why we are not talking about intermediate, it's a good question। तो सबसे पहले मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्स एक्सिस पे एनर्जी होगा, वाई पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। सो दिस इज द रिएक्टेंट, इट गोज लाइक दिस एंड फाइनली फॉर्म्स द प्रोडक्ट। सो एज यू कैन सी, इसमें एक ही स्टेप है, दूसरा कोई स्टेप नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगा या लोअर होगा, ये बताने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब मैंने बोला ट्रांजिशन स्टेट पे ही हमको क्यों फोकस करना है, इंटरमीडिएट पे नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट हमको बताता था कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम और उतना फास्टर रिएक्शन। सिंस यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं है, तो द मोर स्टेबल, अगेन यहाँ पर वही स्टेटमेंट है, द मोर स्टेबल is the transition state, the lower will be the activation energy, lower will be the activation energy, and faster will be the rate of the reaction। तो इसीलिए सिंस यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है रेट ऑफ द रिएक्शन जज करने का, और वो है ट्रांजिशन स्टेट। राइट डाउन एवरीवन। और कोई डाउट किसी को? Shall we move ahead? आगे बढ़े? हाँ सर, हो गया। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So now we will discuss few important points one by one related to nucleophilic substitution. We will be discussing few important points regarding SN2.
These will be very very important points, so बहुत carefully सुनिएगा इसको. The first is the rate of SN2 will be directly proportional to the concentration of substrate, that is alkyl halide, multiplied by concentration of nucleophile. Why I'm saying this? Because इसमें एक ही step है और वो step ही rate determining step है. If you have only one step, then that step becomes the rate determining steps. And in that step, two molecules are colliding. One is nucleophile and one is your alkyl halide, that is substrate. These two molecules are colliding with each other, है ना? So the rate of reaction will entirely depend on their concentrations, है ना? Further, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that rate is equal to, proportionality sign हटाते हैं तो rate constant लाना पड़ेगा, Rx multiplied by Nu minus, as you can see, 1 plus 1, the overall order of this reaction becomes 2. And since two molecules are involved in the rate determining step, which is the only step, hence it is called bimolecular. So the first thing we have to understand is the rate of the reaction, that higher is the concentration of alkyl halide, higher is the concentration of nucleophile, faster will be the rate of SN2. लिख लिया सबने? आगे बढ़े. ये कौन आया? Okay, so we were talking about the important points और ये order molecularity वाला हो गया. Let us move to the second very important point, and second very important point will be stereochemistry. Stereochemistry of SN2. और मैंने आपको बताया था कि if a particular reaction produces a particular stereo isomer and not the others, it is called stereospecific reaction. Now SN2 is a stereo specific reaction. It is definitely a stereo specific reaction, है ना? कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं जरा देखो. अभी रुक जाना, कुछ लिखना मत, बस देखने की कोशिश करो हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना? लेट अस से हमारे पास कार्बन है, ठीक है? दिस इज द सॉलिड लाइंस दैट आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. दिस वेज एंड दिस डैश आर कमिंग आउट एंड गोइंग इनसाइड, है ना? यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूटीरियम और यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है? So as you can see, 4 different substituents are attached to this carbon, so that makes this carbon a chiral carbon, and a compound having one and only one chiral carbon is 100% chiral. Can anybody tell me the configuration of this compound? कोई मुझे इस compound को configuration बता सकता है? R है या S है? कोई बता सकता है? Whether it is R or it is S, कोई बता सकता है? सर आर होगा. आर होगा. कैसे पता करोगे आप? सबसे पहले प्रायोरिटी असाइनिंग 1 2 3 4, एंड लकीली फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. वहीं हमारा काम हो गया. वी विल मूव फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3, and we find that the loop here is the anti-clockwise loop, which makes it S, not R. क्या बोला तुमने? R? एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा ना, फोर्थ प्रायोरिटी गोइंग इनसाइड. और अगर नहीं जा रहा होता तो हम भेज देते उसको, सिंपल. एनीवेज दिस पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर इज एस, है ना? चलिए कोई बात नहीं. अगर ये स्टीरियो आइसोमर एस है तो OH माइनस का बैक साइड से अटैक करा देते हैं. रियर साइड अटैक होता है ना? रियर और बैक साइड अटैक, ये हम लोग सबको पता है कि जो अटैक होता है वो रियर साइड से होता है या बैक साइड से होता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे. ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हमको पता ही है. ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप होता है. ऊपर CH3 हो जाएगा, वेज की तरफ आएगा ड्यूटीरियम एकदम स्ट्रेट हमारी तरफ, और डैश हमसे एकदम दूर जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जाके अटैच होना चाहेगा
न्यूक्लियोफाइल OH और यहां से डिटैच हो रहा होगा क्या, Cl, है ना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव. फाइनली व्हाट विल हैपन, Cl माइनस विल गेट डिटैच्ड, वी विल गेट CCH3 लाइक दिस. यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, वेज ड्यूटीरियम वाला इस तरफ जा रहा होगा लाइक दिस, और डैश हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा होगा, है ना, प्लस Cl माइनस. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे सेम रूल लगा के, अगेन 1 2 3 and 4, again luckily fourth priority group is going inside, so we will move from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, and we will find this loop as clockwise. So this is R. So are you observing one thing, that if the configuration of reactant is S, the product's configuration is R. Inversely, you can also say if it was R, then the configuration of product will be S. This means that SN2 is leading to inversion of configuration. Inversion of configuration. This is a very, very important step. It is leading to inversion of configuration, है ना. This is because of back side, or let us say rear side attack. तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सो SN2 लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. Any problem, anyone? अगर कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट R होगा, और अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट S होगा. It leads to the inversion of configuration SN2. This happens because of the backside attack. आगे बढ़े. हेलो. हेलो. यस, आगे बढ़े. हाँ हाँ. ओके ओके. तो इन्वर्जन हो गया, मतलब थोड़ा सा देखना, अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछूं तो, जैसे मान लो मैं फिशर बना रहा हूं इसका, है ना, फिशर प्रोजेक्शन मैंने एक कंपाउंड का बनाया, ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है. ठीक है. अब इसको मैं अगर OH माइनस से रिएक्ट करा रहा हूं और SN2 हो रहा है रिएक्शन, है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो इसको हम कैसे लिख देंगे, फिशर प्रोजेक्शन एकदम CH3 और इथाइल को हम उसके पोजीशन पे ही रखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं, बट Cl जहां पे था उससे ऑपोजिट रख देंगे OH को, और इधर रख देंगे हाइड्रोजन को. मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, दे शुड ऑलमोस्ट लुक लाइक अ मिरर इमेज. एग्जैक्टली मिरर इमेज तो नहीं है ये, क्योंकि Cl है इधर और इधर OH है, बट इट शुड बी लुकिंग लाइक द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. जैसे अगर इसको हम लोग देखें तो 1 2 3 4, सिंस हॉरिजॉन्टल पे है फोर्थ प्रायोरिटी, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1. This is clockwise, so it will be called S, or I am very sure कि this will be, the product will be R. ठीक है ना. तो इससे आप बोल सकते हो कि it will always change the configuration.
कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, एक और एग्जांपल देखना, ये भी थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। मान लो कि किसी मॉलिक्यूल में ऐसा 2 कायरल सेंटर हो जा रहा है। 2 कायरल सेंटर मतलब यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटीरियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है। मान लो इस तरह का सिचुएशन अराइज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कायरल सेंटर हो गए, है या नहीं? दोनों ही कायरल सेंटर है, ये भी कायरल और ये भी कायरल, है ना। तो जब हम इसमें OH माइनस ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि दोनों के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा भाई? जिस कार्बन पे अटैक होगा उसके रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। मतलब बहुत सिंपल है कि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वहां के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। मतलब देखा जाए तो दिस प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट का अगर आप नेमिंग कर दो, नेमिंग कैसे कर सकते हैं? ये वाला पूरा ग्रुप 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सो 1 2 2 2 2 3, दिस गिव्स अस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज S। और यहाँ पर आते हैं, दिस इज 1, दिस थिंग इज ओवरऑल 2, this thing is 3 and this is 4. So again 1 to 2 to 3, this is which direction? This is anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब R है, ठीक है ना। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में S है, इसके रिस्पेक्ट में R है, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में S आएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी S हो जाएगा। Got it everyone? यस सर। उसी कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा जिसपे अटैक हो रहा है, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सर हाँ बोलो। अगर ड्यूटेरियम की जगह फ्लोरीन रहता और कुछ हैलोजन ग्रुप रहता तो क्या होता? तो फिर सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ता, क्या उसमें भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वहां भी हैलोजन है तो वहां भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इंटेंशनली वहां हैलोजन नहीं रखा है कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना हो। अगर वहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो फिर वहां भी इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। Now this inversion has got a special name, लिख लीजिए, it's called Walden's inversion, है ना। ये जो SN2 वाला इन्वर्जन है इसका एक नाम है, it is called Walden's inversion. Because of the rear side attack, the carbon at which the nucleophile attacks, the configuration with respect to that carbon changes, and this is called Walden's inversion. लिख लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। आगे बढ़े, चलिए। So let us move ahead, and the next point we are going to do is the third point, and this is a very very important point, the orbital approach. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ऑर्बिटल अप्रोच समझते हो तो। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्बिटल अप्रोच, पहले ये समझिए, है ना। Orbitals, we all know, orbitals are the home of electrons. It is the region of space where probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है इस तरह का, है ना, और इसके पास ऑलरेडी, जस्ट वेट, यस, इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके ऑर्बिटल सारे फिल्ड हैं, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। क्यों बोलो? क्योंकि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो अब अगर
न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है और अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, इफ न्यूक्लियोफाइल tries to give its electron to this particular carbon, where the answer is, where will carbon store, where will that carbon store that particular, what do you call it, electron pair. अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, तो वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां रखेगा, कौन से ऑर्बिटल में रखेगा? एनी आइडिया, एनीवन? हैलोजन के पास OX है। हाँ जी, बोलिए क्या? हेलो, क्या बोल रहे थे? अद्वितो, क्या लगता है कहां स्टोर करेगा? कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर, यस सर। हाँ, तो हाँ बताइए सर। कहां पे स्टोर करेगा, क्या लगता है? देखिए, द हिंट लाइज विथ विच बॉन्ड इट इज ब्रेकिंग। यस, बोलिए। सर कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल है उसमें नहीं 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 नहीं, गलत गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। देखो, आपको पता करना है, इफ यू वांट टू नो दैट वेयर एग्जैक्टली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो, है ना, द हिंट लाइज विद द बॉन्ड दैट यू आर ब्रेकिंग। विच बॉन्ड यू आर ब्रेकिंग? यू आर ब्रेकिंग अ CX bond, CX sigma bond. So this electron will initially go into sigma star CX. It will go into the sigma antibonding orbital, that is the CX antibonding orbital. Why it will happen? Because सोच के देखो, जैसे जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग का उल्टा होता है, वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब पूरे तरह वो भर जाएगा तो ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कहां भेजेगा? पाई स्टार CX में। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखिए, इस ऑर्बिटल अप्रोच को मैं और अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूं, बिकॉज दिस शुड नॉट बी seen as just a case of this particular reaction. In every reaction, आप बात समझ लीजिए, in every reaction or in every mechanism, we have seen that electrons flow, और इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल। ये बात आप ध्यान रखना, फ्रॉम ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ डोनर ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्टर ऑर्बिटल। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड सेंस में अगर मैं बोलूं, तो डोनर ऑर्बिटल इज द हाईएस्ट occupied molecular orbital, HOMO, and acceptor is lowest unoccupied molecular orbital, that is LUMO, है ना। So electrons always go from HOMO to LUMO। ये बात आपको समझनी है, तो इतना लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। Orbitals always move from highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied molecular orbital। डोनर ऑर्बिटल को HOMO बोल सकते हैं, एक्सेप्टर को LUMO बोल सकते हैं। सर, हाँ जी, बोलो। सर आप एक बार 2 नंबर पॉइंट एक बार दिखा पाएंगे, क्योंकि तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, बस स्क्रीनशॉट लेना है। पॉइंट नंबर 2। हाँ सर। स्टीरियोकेमिस्ट्री। हाँ सर।
ठीक है, हाँ सर हो गया। ओके। So in every reaction, electrons flow, and electron always flows from orbital to orbital, from donor orbital that is HOMO to acceptor orbital that is LUMO, है ना? जैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे यहां पर अगर मैं देखूं कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, OH माइनस विल गो ओवर हियर, है ना? मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, तो OH माइनस का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां से मूव कर रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? आप कैलकुलेट करोगे तो sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डोनर ऑर्बिटल है, डोनर ऑर्बिटल जिसको आप होमो भी बोल सकते हो, वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज मूविंग इज केप्ट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो एक्सेप्टर है, जिसको हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LUMO बोल रहे हैं, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है पाई स्टार CX, ठीक है? तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो एक होमो या डोनर ऑर्बिटल होता है और एक्सेप्टर और एक LUMO ऑर्बिटल होता है। लिख लीजिए। कोई मूव कर रहा है क्या? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Please note it down. आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखूंगा वो है एनर्जी ऑर्डर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। एनर्जी ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, है ना? व्हाट आई विल डू इन दिस एनर्जी ऑर्डर इज, मैं एनर्जी वाइज एक ऐसा कर्व बनाऊंगा, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी, है ना? और इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स को प्लेस करूंगा। जैसे अगर आप बोलोगे सबसे स्टेबल ऑर्बिटल आप किसको मानते हो, तो आई विल से अ सिग्मा ऑर्बिटल इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज अ सिग्मा बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड, है ना? सिग्मा के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? सिग्मा के जस्ट ऊपर हो जाएगा पाई। व्हाई? पाई's एनर्जी इज ग्रेटर बिकॉज पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन सिग्मा, है ना? उसके बाद आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। sp is the hybridized orbital, atomic orbital, which is most stable. Why it is most stable? Because it has 50% s character। 50% s character मतलब maximum electronegativity, और maximum electronegativity मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद जैसे जैसे s कैरेक्टर कम होता जाएगा, sp2 एंड देन sp3, वैसे वैसे इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, दैट विल बी प्योर पी, है ना? क्योंकि प्योर पी में एस कैरेक्टर क्या है? 0%, है ना? देन उसके ऊपर आएगा पाई स्टार, और पाई स्टार के भी ऊपर आएगा सिग्मा स्टार, है ना? अगर सिग्मा सबसे स्टेबल है तो सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो पी से लेकर दिस sp3 sp2 sp, these are atomic orbitals, मतलब एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? जबकि पाई, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, व्हाट आर दे आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, दैट पाई स्टार, पाई, सिग्मा, these are molecular orbitals, sp3 sp2 sp, these are hybrid orbitals, and p is a pure atomic orbitals। so इस एनर्जी ऑर्डर में मैंने सबको ही ले लिया है। मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी कंसिडर कर लिया है, मैंने आपके प्योर ऑर्बिटल्स को भी कंसिडर किया है, और मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को भी कंसिडर किया है। तो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ये वाला एनर्जी ऑर्डर आप बना लीजिए। you always have to keep this in your mind। कोई डाउट है तो पूछो इस एनर्जी ऑर्डर में।
सर थोड़ा पहले से रिपीट करेंगे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे क्या हो रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एनर्जी ऑर्डर बता रहा हूँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, ठीक है? हाँ सर। और इस ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने किसको रखा है? सिग्मा को, क्योंकि सिग्मा स्टेबल बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा। तो उसके ऊपर आ गया पाई, है ना? पाई हाँ सिग्मा सर। से वीकर होता है, मतलब लेस स्टेबल होता है, हायर एनर्जेटिक। sp हाँ sp2 sp3 आर hybridized orbitals. They will definitely be unstable as compared to molecular orbitals, है ना? लेकिन हाँ। sp में 50% s कैरेक्टर, मैक्सिमम s कैरेक्टर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबिलाईज कर पाएगा। और sp2 उसके बाद, और सबसे अनस्टेबल हो जाएगा sp3, क्योंकि इसमें मिनिमम s कैरेक्टर है। और जो प्योर p है उसमें तो 0% s कैरेक्टर है, तो वो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो उसको मैंने और ऊपर रख दिया है ना? और जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात आती है तो वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सिग्मा सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सिग्मा स्टार सबसे ठीक। कम स्टेबल। दैट इज द थिंग। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने रेड में 3 ऑर्बिटल्स बनाए हैं ना, मोस्टली आप देखोगे कि जो ल्यूमो है, ल्यूमो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टर ऑर्बिटल। इन्हीं तीनों में से कोई एक्सेप्टर ऑर्बिटल आपको दिखाई देगा, है ना? और ये जो मैंने ग्रीन वाले बनाए हैं ना, ये आपके होमो रहेंगे, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं डोनर ऑर्बिटल भी बोल रहा हूँ। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में होता रहेगा, है ना? जैसे एवेंजर्स एवेंजर्स में होता है ना, ग्रुप बन जाते हैं, ल्यूमो होमो, ऐसे 2 ग्रुप बना हुआ है ना? और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन्हीं दोनों के बीच में होता रहता है, होमो टू ल्यूमो। ल्यूमो में वन ऑफ दीज होगा और होमो में वन ऑफ दीज होगा। गॉट इट? ये 2 टीम टाइप का है, होमो टीम और ल्यूमो टीम। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। Mute yourself, everyone. Mute yourself. चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं लिखने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिडरेशन आपको क्या करना है, ठीक है? इसको मैं सुपर स्टेटमेंट भी बोल सकता हूं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर स्टेटमेंट। अच्छा, सुपर स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझो। जो डेल्टा ई है, व्हाट इज डेल्टा ई? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो। होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है ना? ऑब्वियसली ल्यूमो हायर एनर्जी पे, तो ल्यूमो माइनस होमो लिखना चाहिए, बेटर होगा। yes, this lumo minus humo, this energy gap is very very important, lumo minus homo, है ना? this delta e, this higher this is, higher is this delta e, slower will be the reaction। मतलब इस एनर्जी गैप को आपको मिनिमम रखना है। डेल्टा ई जितना कम होगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो मतलब आपको कैसे भी करके जो होमो और ल्यूमो है उसके बीच का एनर्जी गैप को मिनिमम रखना है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है, दिस डिसाइड्स योर रेट ऑफ रिएक्शन। आप कह सकते हो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ये फास्टर होगा उतना ये बेटर रिएक्शन कर पाएगा।
लिख लिया सबने? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलिए अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है? CH3 रिलेटेड टू CH2 पॉजिटिव, है ना? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखते थे हम? हाइपर कॉन्जुगेशन देखते थे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता था, यस और नो? हाँ सर। तो बोलो कहां से कहां एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? डोनर एटम क्या है, होमो क्या है? सिग्मा CH, दिस बॉन्ड, राइट? एंड ल्यूमो क्या है? कार्बन पॉजिटिव मतलब प्योर P, यानी दिस, है ना? तो एनर्जी गैप कितना हुआ बोलो? इस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेप का एनर्जी गैप बोलो कितना हुआ? दिस इज फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. डू यू अग्री और नॉट? बोलिएगा. सर यस, हु इज दिस? सर सोमूदीप. हाँ, सर सोमूदीप बोलो. सर कार्बोकेटायन का sp2 नहीं होता? हाँ, तो sp2 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? प्योर P में जाता है ना. हाँ ठीक. समझ में आ रही बात? उसका प्योर P खाली होता है, वहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा. समझ में आ रही है ना बात? चलिए, अब ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई मान लीजिए आपके हाइपर कॉन्जुगेशन की. अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं जिसमें CH2 पॉजिटिव है और इससे कनेक्टेड है एक OH, ऐसा, है ना? तो इसको आप क्या बोलते हो? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हो, बैक बॉन्डिंग मेसोमेरिक इफेक्ट, कुछ भी बोलते हो. यहाँ पे ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? देखिए, OH का sp3 और इसका अभी भी प्योर P, मतलब दिस इज sp3 एंड दिस इज प्योर P. तो एनर्जी गैप देखो, दिस इज द एनर्जी गैप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. अब थोड़ा सा सोच के देखो, इसीलिए हम किस इफेक्ट को डोमिनेंट इफेक्ट बोलते हैं? बोलो. मेसोमेरिक इफेक्ट को, एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ द एनर्जी गैप. देखो एनर्जी गैप कितना मिनिमम है. अगर एक sp3 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन प्योर P में जा रहा होगा तो वो कितना फास्टली जाएगा, कितना फास्ट होगा, इसका डेल्टा E कितना कम है. दिस इज द मिनिमम डेल्टा E, hence this will be the fastest and the most dominant effect. समझ आया सबको? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन? नहीं सर। लिख लिया? आगे बढ़े. हाँ जी सर बोलो. एक सेकंड। कोई डाउट पूछना चाह रहा है क्या? Shall I proceed ahead? यस सर। हाँ सर। ओके, चलिए आप मेरे को एक चीज बताना, ठीक है? अगर मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस, CCH3H डबल बॉन्ड NOH, इफ यू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइन, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है और पाई बॉन्ड के भी फॉर्म में है ना? मान लो मैं इसको HCl को देना चाह रहा हूँ, इससे HCl से रिएक्शन करा रहा हूँ. तो जब भी HCl को इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो क्लियर सी बात है कि कहाँ मिल जाए, वो जाएगा सिग्मा स्टार HCl. मतलब जो होमो का लेवल है, सॉरी ल्यूमो का जो लेवल है वो फिक्स्ड है. आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन भेजो, आपको सेम जगह पे भेजना है.
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप नाइट्रोजन से लोन पेयर भेजोगे, ऑक्सीजन से लोन पेयर भेजोगे, या फिर पाई बॉन्ड भेजोगे? प्लीज टेल मी। सर पाई बॉन्ड से सर, क्यों? क्योंकि सर एनर्जी गैप लेस होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। सर ऑक्सीजन से। यस करेक्ट, ऑक्सीजन से जाएगा। अरे नाइट्रोजन वाला sp2 है, ऑक्सीजन वाला sp3 है, ठीक है। sp3 का एनर्जी sp2 से ज्यादा होता है ना, अनस्टेबल होता है, और पाई तो और भी नीचे होता है, लाइक दिस। तो अगर आपको मिनिमम एनर्जी लेवल चाहिए तो आप sp3 से भेजोगे ना, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो फ्रॉम sp3, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन। एनी डाउट एनीवन? नहीं सर। देखिए आपका जो होमो है ना, याद रखना, होमो शुड बी एज अप एज पॉसिबल। वो जो टेबल मैंने बनाया है, जो मैंने लाइन बनाई है, उसमें होमो एज अप एज पॉसिबल होना चाहिए एंड लूमो शुड बी एज डाउन एज पॉसिबल। जितना डाउन हो सके उतना बढ़िया है। समझ में आई बात? होमो जितना अप रहेगा, ये देखिए, होमो जितना ऊपर रहेगा, ल्यूमो जितना नीचे रहेगा, उतना कम डेल्टा ई होगा और उतना बेटर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकेगा, उतना स्मूथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकेगा। शैल आई प्रोसीड अहेड? यस सर। ओके, सो मैंने आपको ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट समझाया है, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक और दिस चैप्टर. This orbital concept will be used throughout the organic chemistry. Many of your doubts, many of your questions and conceptual clarity will come from this particular concept, that is the electron flow from HOMO to LUMO. Right? आगे बढ़े? चलो. Let us proceed ahead then to the next point. And what is our next point? Next point is the stability of transition state. Stability of ट्रांजिशन स्टेट. as I have already told you, यहाँ पर इंटरमीडिएट तो है नहीं, इसलिए the only thing we have to care about is the transition state stability, है ना. अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, like this, रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम is like this, है ना. this is reactant, this is product, this is transition state, energy, progress of the reaction. So the only thing we have to care about is the transition state stability. जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा हमारा और उतना फास्टर रिएक्शन होगा. सो बेसिकली वी हैव टू थिंक ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. अब जो ट्रांजिशन स्टेट है जरा उसको याद करो कैसा होता था. मैंने आपको बोला था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप है हमारा ट्रांजिशन स्टेट. इट लुक्स लाइक yes, it looks like this. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हेलोजन, है ना. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तीनों जगह, है ना. सो आवर ट्रांजिशन स्टेट, एज यू कैन सी, ट्रांजिशन स्टेट आप जैसे देख रहे हो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है. अब बोलो क्या बड़ी प्रॉब्लम है? दैट देयर आर 5 substituents attached to the carbon. और कार्बन तो भाई ऐसा है कि अगर उसमें 4 भी बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स आप अटैच कर दो तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है. तो अगर हम बात कर रहे हैं 5 की, तब तो यहाँ पर बल्कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गए तब तो यहाँ ह्यूज रिपल्जन हो सकता है. यहाँ पे ह्यूज रिपल्जन हो सकता है. और इस ह्यूज रिपल्जन को आप किस तरह का रिपल्जन बोलेंगे? आप इसको बोलोगे स्टेरिक स्ट्रेन, या आप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम दे सकते हो, या स्टेरिक फैक्टर का नाम दे सकते हो. स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है. व्हाट दिस स्टेरिक हिंड्रेंस इज डूइंग?
these bulky groups are making bulky groups. Try to understand, these bulky groups are making what? Are transition state unstable. और ट्रांजिशन स्टेट के अनस्टेबल होने का मतलब है ये चीज ऊपर जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा और रिएक्शन स्लो होगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ transition state will be judged by the first factor, and that factor is steric hindrance. मतलब we want our transition state to be less hindered sterically. अगर steric hindrance इसमें ज्यादा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो स्टेबिलिटी जब हम काउंट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट का, तो जो फर्स्ट फैक्टर वी विल कंसिडर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर. राजू ब्रतो? नहीं सर. ओके. तनुप्रियो, कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके. अग्निवो? सर. This is the first steric factor. Now let us come to the second factor, and the second factor is the electronic factor. अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, याद रखो कि न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देना चाहेगा जिस कार्बन के पास कोई फील्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सॉरी कोई अनफील्ड या खाली ऑर्बिटल है नहीं. सो स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? ल्यूमो, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन जहां भेज रहा है एक्सेप्टर ऑर्बिटल, वो कितना स्टेबल है या कितना रीचेबल है, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी. व्हाट डू यू मीन बाय रीचेबल? जैसे सोचो कि हमको सीआई बॉन्ड है हमारे पास, है ना, और हम न्यूक्लियोफाइल को पास ऑन कर रहे हैं टू सी बॉन्ड, सीआई बॉन्ड. तो सीआई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यानी यहाँ पे किस बॉन्ड किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा? सिग्मा स्टार, है ना. तो दिस सिग्मा स्टार सीआई is very much reachable molecular orbital. Why I am saying reachable? This is because CI bond is weak. CI bond being the longest, it is weak. तो अगर CI bond easily weak है और easily break किया जा सकता है, तो sigma star CI will be reachable. On the other hand, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को मान लो कि CF में भेज रहे हो, ठीक है, तो अगेन ये कहाँ पे जाएगा? सिग्मा स्टार CF में. ठीक है, सिग्मा स्टार CF विल नॉट बी वेरी रीचेबल. रीचेबल का मतलब एनर्जी इसकी काफी ऊपर हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग. अगर CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो C स्टार CF इतना रीचेबल नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखना इतना इजी नहीं होगा. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मतलब मैं आपको एक बार और समझाता हूं. ये जो हमारा चार्ट है, मान लीजिए इस चार्ट को हम देख रहे हैं, तो सिग्मा स्टार CI अगर यहां पर है तो सिग्मा स्टार CF क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा. तो मतलब इट इज एडिंग टू द एक्स्ट्रा एनर्जी गैप. पहले हमको जो एनर्जी गैप मिल रहा था CF में, वो एनर्जी गैप बढ़ जा रही है. ठीक है ना. तो ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह का लीविंग ग्रुप हमारे पास है. द बेटर इज द लीविंग ग्रुप, द फास्टर विल बी द रिएक्शन, है ना. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर while forming transition state. कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस लूमो में जा रहा है, कितना बेटर, कितना रीचेबल या कितना नजदीक है वो लूमो. जितना ऊपर होगा उतना दिक्कत होगा वहां पहुंचना. Yes, any problem, anyone?
तो दो फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में आप देखोगे आपके ट्रांजिशन स्टेट में कितने बल्की ग्रुप्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आप देखोगे कि द इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियोफाइल इज सप्लाइंग इज गोइंग वेयर। क्लियर? शैल वी मूव अहेड? यस सर। ओके ओके, तो चलिए हम लोगों ने बात कर लिया इसका। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, फैक्टर नंबर और पॉइंट नंबर 5, दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? देखिए, सबस्ट्रेट का सीधा मतलब है एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए दिस इज एल्काइल हैलाइड, है ना, और बाकी जो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं दीज आर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो गया? मिथाइल हो गया, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? मिथाइल हो गया। दूसरा हमारा सबस्ट्रेट है, उसमें एक मिथाइल है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, मतलब दिस इज इथाइल बेसिकली। इथाइल मतलब प्राइमरी 1 डिग्री, है ना। दूसरा हो सकता है कि एक इथाइल नहीं है हमारे पास 2 इथाइल है। तो कहने का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोप्रोपाइल और यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी, ठीक है। और इस सिचुएशन में तो CH3 वेज पे भी CH3 और डैश पे भी CH3X, तो यहां पर हो गया टर्शियरी, दैट इज 3 डिग्री। सो इफ आई आस्क यू कि वी हैव दीज सबस्ट्रेट्स, तो किसमें SN2 फास्टर होगा, किसमें स्लोअर होगा, क्या लगता है? So 1 degree और फास्टर होगा। सबसे ज्यादा फास्ट होगा मिथाइल में, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप बिल्कुल नहीं है, एकदम छोटे छोटे ग्रुप है ना। उसके बाद 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट एक बल्कि ग्रुप है। फिर 2 डिग्री, 2 बल्कि ग्रुप है ना। हाइड्रोजन तो स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल साइज का, और यहाँ तो और भी गड़बड़ हो जाएगी, 3 बल्कि ग्रुप है ना। तो सबसे फास्ट रिएक्शन मिथाइल में, फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 3 डिग्री में स्लोवेस्ट होगा। बल्कि आप आगे चल के देखोगे SN2 इम्पॉसिबल हो जाता है 3 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस एक्चुअली किसके लिए इंपॉर्टेंट है बोलो? स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं लाइक दिस, हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और यहां पर हम 3 बल्की ग्रुप रख दें लाइक CH3 और इवन यहाँ PH फिनाइल, तो बहुत ज्यादा रिपल्जन हो जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। एनी डाउट एनीवन? डन, आगे बढ़े। हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मान लो N प्रोपाइल क्लोराइड है हमारे पास, N प्रोपाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, और N प्रोपाइल आयोडाइड है हमारे पास, लाइक दिस, है ना। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बोलिए? सर थर्ड वन। यस, आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड। क्यों? लीविंग ग्रुप, आयोडाइड इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप कैसे समझाओगे कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार Ci में, और हमने देखा कि सिग्मा स्टार Ci इज मोस्ट रीचेबल। तो जितना रीचेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बेटर इज द लीविंग ग्रुप, फास्टर विल बी द रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम एनीवन?
नो सर। देन दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू। कल मंडे को हम लोग 9 से 12 फिर मिल रहे हैं अपना डाउट सेशन डिस्कस करने के लिए। 9 से 11 सॉरी, 12 तक नहीं होगा, वो 2 घंटे ही होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।